we discuss about the different kind of sensors which we use all around our day. That is in this figure. In this figure, you can see a different kind of sensor. Maybe whether it would be a color sensor, whether it would be a gas sensor, LDR sensor, proximity sensor, or rain sensor to sense the rain. Maybe it would be it can be a PIR sensor. This is the passive infrared sensor, or a water flow sensor to sense the water flow. And there may be an ultrasonic sensor. So there are different kind of sensors used for the different purposes. Okay, they are designed for sense the different things. So the name here, just like a gas sensor is used to measure the pressure of gas. LDR sensor, as in the previous session we have discussed about the light sensor, which is used to sense the level or the presence of light. So there are different kind of sensors. Okay, the first thing is how we classify the sensors. It is we can classify the sensors on a different basis. Okay, so this is a simple thing that we live in the world of sensors, because in everyday life we see sensors all around us, just like on or your mobile phone, in which different kind of sensors are working. So this is a very real time and a very easy example of sensors. So you can find different kind of sensors in your homes, offices, cars, working to make our lives easier, by just like by turning your lights, by sensing your presence, or by adjusting the room temperature, by sensing the smoke of fire. It is you can see easily in offices that there is a sensor which always there, so that there would be not any kind of mishappening regarding the fire or smoke. And open garage doors or the doors is also very easy to see in our real world. So sensors all around the world, sensors are there, but our need is to connect them through the Wi-Fi. Okay, this is a need of the IoT, so that we can accomplish our desired work. So the classification of sensors. So there are actually several classification of sensors made by the different authors and the experts. But this is that I am showing you. This is a very simple classification of sensors. Okay, so classification कई तरह से किया जा सकता है, but what I am showing is a simple classification of sensors. So in the first classification of sensors, they are divided the sensors into the active sensors and the passive sensors. So the active sensors क्या होते हैं और passive sensors क्या होते हैं? अब इसमें difference देखते हैं. Active sensors are those which require an external excitation signal or a power signal. यानी कि एक्टिव सेंसर्स को हमें एक्सटर्नल सिग्नल या फिर पावर सिग्नल देना पड़ेगा. बट इन केस ऑफ पैसिव सिग्नल्स, they do not require any kind of external power signal and directly generates the output response. ठीक है, ये दो तरह के सेंसर्स, एक तो क्लासिफिकेशन होगा एक्टिव एंड पैसिव, and the other type of classification is based on the means of sensing used by sensor. किस तरह से सेंस कर रहा है सेंसर. जैसे कि इलेक्ट्रिक सेंस का यूज कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स का यूज कर सकते हैं सेंस करने के लिए, केमिकल का यूज कर सकते हैं सेंस करने के लिए, बायोलॉजिकल चीजों का यूज कर सकते हैं सेंस करने के लिए. तो एक तो ये हो गया सेंसर को क्लासिफाई करने का तरीका. ठीक है, कि हमें किस तरह से सेंस कर रहा है. जैसे IR सेंसर इंफ्रारेड का इस्तेमाल करता है, यूज करता है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन है. तो दो तरह के क्लासिफिकेशन हो गया. सिमिलरली the next classification is based on the conversion phenomena. एग्जाम्पल पे देखें तो इनपुट एंड द आउटपुट. ठीक है, इनपुट और आउटपुट कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, उसके बेस पे हमारा सेंसर का क्लासिफिकेशन होता है. सो सम ऑफ द कॉमन कन्वर्जन फॉर्मूला जो कॉमन कन्वर्जन फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि आपका हो गया फोटो इलेक्ट्रिक, थर्मो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर थर्मो ऑप्टिकल. इससे और भी हो सकते हैं. तो एक क्लासिफिकेशन इसके बेस पे होता है कि कन्वर्जन फॉर्मूला क्या.
And let's come to the final classification of sensors, that are the analog and the digital sensors. Okay, तो sensor में भी analog हो सकते हैं, sensor में भी digital हो सकते हैं. As we know that the analog sensors produce the analog output. Analog output is what? What is a continuous output signal? A continuous output signal with respect to the quantity being measured. Analog signals क्या होते हैं? Continuous output. And digital signals is like in discrete thing, not a continuous thing. So this is a difference, that digital sensors work with the discrete things, and the analog sensors are work with the analog output, और analog output produce करता है. ये दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, तो ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन दिखा दिए गए हैं. एक तो एक्टिव और पैसिव के बेस पे. दूसरा आपका सेंसर्स का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, मींस ऑफ सेंसिंग. Third classification is based on the input to output conversion, and the final classification is based on whether the your sensor is analog, sensing the analog things output, or the digital output. Okay, so इस तरह से हम sensors को classify कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि what kind of different type of sensors are here. So the following is a list of different types of sensors that is commonly used in the various applications. These sensors may be used to measure one of the physical properties like temperature. Temperature sensor for measuring the or sensing the temperature, capacitance, conductance, heat transfer. Maybe different sensors may be used for the different purposes. Okay, so here is in the figure you can see the list and the figure of sensors, and also there in besides this there is a sensor of sensor list is also here. Okay, who is drawing here on the PPT? Hello? Hello? Are you getting my voice, Bhatti sir? Yes, sir. Okay, ठीक है, okay. So IoT sensors, let's discuss one by one regarding the different kind of sensors. Okay, so let's come. First sensor is a touch sensor. As the name implies, a touch sensor is an electronic sensor used to detect or sense and record the physical touch. ये sensor touch को sense करता है. There can be two type of sensor, touch sensors. One is a capacitive sensor, resistive sensors. Two kind of sensors may be touch sensors. So capacitive touch sensors में क्या होता है? That measures touch based on the electric disturbance from a change in capacitance. ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जो होता है कैपेसिटेंस में चेंज के रिगार्डिंग होने पर, तो वो कैपेसिटेंस टच सेंसर होता है. रेजिस्टिव टच सेंसर मेजर्स टच थ्रू रिस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर अप्लाइड टू द सरफेस. जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है सरफेस पे, उसके थ्रू रेजिस्टिव टच सेंसर्स काम करते हैं. ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटिव टच सेंसर एंड द रेजिस्टिव टच सेंसर. ओके, कैपेसिटिव में हम प्रेशर की कोई बात नहीं करते हैं, पर रेजिस्टिव में वी आर वर्किंग ऑन द मॉडल ऑफ प्रेशरिंग अप्लाइड ऑन द सरफेस. ठीक है, सो ये दोनों सेंसर्स में इस स्लाइड में हमने कुछ डिफरेंस दिखाए हैं, और ये किस किस पर्पज से यूज होते हैं, कहाँ कहाँ पे दोनों को हम यूज कर सकते हैं. सो कैपेसिटिव टच सेंसर्स आर हियर एंड रेजिस्टिव टच सेंसर्स आर हियर. तो पहले तो है कि ये कैसे मेजर करता है. तो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम ए चेंज इन कैपेसिटेंस, ये तो हमने पहले ही दिखाया. दूसरा हमने बताया कि अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड होता है रेजिस्टिव टच सेंसर में. दूसरा इसका मेजरमेंट क्या है, मल्टी टच है कि नहीं है. कैपेसिटिव टच सेंसर इज अ मल्टी टच कैपेबल, बट द रेजिस्टिव टच सेंसर इज नॉट अ मल्टी टच कैपेबल. रेजिस्टिव टच सेंसर में किसी तरह का मल्टी टच नहीं होता है. उसी तरह से प्रेशर रिक्वायरमेंट एक इसका पैरामीटर देखें तो वहां पे कैपेसिटिव टच सेंसर डज नॉट रिक्वायर प्रेशर टू बी अप्लाइड. इसी तरह का प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है वहां पे, बट क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर की बात ही नहीं होती है. बट रेजिस्टिव टच सेंसर डील्स विद द एंड रिक्वायर एंड रिलाइज ऑन द प्रेशर टू बी अप्लाइड. ठीक है, एंड एक पैरामीटर और, कंपैटिबिलिटी विद द ग्लोब्स स्टाइलस डज नॉट वर्क विद ग्लोब्स स्टाइलस. रेजिस्टिव क्या है, वो वर्क करता है ग्लोब्स और स्टाइलस के साथ में. एप्लीकेशंस क्या है इनकी. कैपेसिटिव टच सेंसर इज अ वेरी पोर्टेबल डिवाइस. स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, होम अप्लायंसेस में वी कैन सी द यूज ऑफ द कैपेसिटिव टच सेंसर यूज होते हैं. ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होते हैं. ठीक है, उसी तरह से रेजिस्टिव टच सेंसर कहाँ यूज होते हैं. रेजिस्टिव टच सेंसर आर यूज्ड इन
and basically in the musical instruments, touchpads, etc. older music players, game consoles में भी use होते हैं ये. तो ये दोनों का ये फर्क है कैपेसिटिव टच सेंसर्स का एंड द रेजिस्टिव टच सेंसर्स का. Now I would like to share with you a very simple video based on how to design a very simple touch sensor. Okay, this is a very small video, but shows how to use the touch sensor. Okay, so भाटी सर वॉइस आ रही है क्या वीडियो की? हाँ सर वॉइस आ रही है. Okay, so let's see this video. This shows that how to design a touch sensor. Okay, so you have seen this video. This video is regarding to. मैं देखता हूँ सुखेगा क्या फोन लगा रहा बट्टा किसी को तुम्हारे फोन है This video is a लोगों के घर में झांक ना छोड़िए मकीजा. Okay, 1 minute. So you have seen this video. So this video is regarding to design. This video is regarding to design the touch sensor as well as the fire sensor. So in this small video, you have seen that how it is possible, okay, to design the touch sensor or the fire sensor. You can try it at your home if you have all the things with you, equipments with you. So the next sensor we are now going to discuss is an LDR sensor. LDR is a light dependent resistor, or you can also call it the photo resistors.
are often used in circuits where it is necessary to sense the presence or the level of light. So it senses the presence of a light and as well as the level of the light. Okay, कि कितना level है, कि light ऊपर है, नीचे ज़्यादा है, कम है. So they can be described by the various of names. इसको कई तरह के नाम से बुला सकते हैं, just like in light dependent sensor भी कह सकते हैं, LDR भी कहते हैं, photo resistor भी कहते हैं, और even photo cell कहते हैं, और इसे photo conductor भी कहते हैं. Okay, so this LDR is a component that is very sensitive to light. बहुत ही सेंसिटिव होता है लाइट में, ऐसा कंपोनेंट है इसमें. When light falls upon it, resistance changes. तो इस सेंसिटिव कंपोनेंट पे जब लाइट फॉल होती है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है. ठीक है, तो LDRs are made up of semiconductor materials to enable them to have light sensitive properties. तो LDR में क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं जिसमें कि जो उसको इनेबल करता है लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज इम्बाइब करने के लिए. तो इस तरह के कैसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे जस्ट लाइक ऑन फोटो रेजिस्टर में जैसे कि कैडमियम हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है. ठीक है, although the use of these cells is now restricted in Europe because of the environmental issues with the use of cadmium. तो कैडमियम को जब हम इसमें यूज करते हैं इस सेंसिटिव मटेरियल के लिए, लाइट के लिए, तो लाइट सेंसिंग के लिए, तो ये इसका यूज restricted है यूरोप में because of the some health issues और environmental issues there. तो कैडमियम का यूज अभी कम है, बट इसको यूज किया गया है, इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो LDR समझ में आया है कि दिस इज यूज फॉर द सेंसिंग द प्रेजेंस और द लेवल ऑफ लाइट. द सेंसर फिगर इज आल्सो हियर इन दिस स्लाइड. You can see that here. This is a sensor figure, and this is LDR in the circuit in the orange thing here. This is the orange thing. That is a circuit for where the light would be fallen down, and the sensor the sense the level or the presence of light. So now we are going to discuss that ये LDR कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट है. ठीक है, तो जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी कि दैट कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ड्रिफ्ट इन अ गिवन डायरेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो वो एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जहां पे कंडक्टर अच्छे होते हैं. ठीक है, अब उसी तरह से इंसुलेटर विद अ हाई रेजिस्टेंस हैव वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इंसुलेटर में जहां पे रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, देखो रेजिस्टेंस हाई होगा, इट मींस दैट बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दे आर वेरी इट इज वेरी हार्ड टू मेक देम मूव एंड हेंस द करंट टू फ्लो. करंट भी कम फ्लो होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं वो बहुत ही कम है. ठीक है, सो LDR और द फोटो रेजिस्टर इज मेड बाय सेमीकंडक्टर मटेरियल विद अ हाई रेजिस्टेंस. यानी कि जो फोटो रेजिस्टर है वो ऐसे मटेरियल से बना होता है, सेमीकंडक्टर से, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. मींस उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे बहुत ही कम होंगे, उनका मूवमेंट बहुत कम होगा. सो ओके, इट हैज हाई रेजिस्टेंस, सो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो लॉक्ड होंगे, एक क्रिस्टल लैटिस की तरह एक लॉक हो जाएंगे और वो मूव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जैसे ही लाइट पड़ती है सेमीकंडक्टर पे, देन दिस फोटॉन्स, लाइट फोटॉन्स जो होते हैं, लाइट के फोटॉन्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर देता है सेमीकंडक्टर लैटिस, देन एब्जॉर्ब दिस लाइट फोटॉन्स एंड सम ऑफ देयर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स. इसकी थोड़ी सी एनर्जी आपको ट्रांसफर हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के पास. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो ब्रेक फ्री हो जाते हैं. जो क्रिस्टल लैटिस में वो एक जगह इकट्ठा थे, वो देन दे ब्रेक फ्री, और एंड ब्रेक फ्री होने के बाद मूवमेंट होता है. मूवमेंट होगा तो क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है. सो दिस रिजल्ट इन अ लोअरिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड हेंस द ओवरऑल LDR रेजिस्टेंस. इसके थ्रू सेंस हो जाता है कि लाइट उस पर कितनी पड़ी है कि प्रेजेंस है कि नहीं है. तो ये इसका एक LDR का ये वर्किंग प्रिंसिपल है. सेमीकंडक्टर मटेरियल इसमें मेन है, और इसमें कितना मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर रहे हैं, ये इसके बेस पे ये सेंस कर लेता है लाइट को. ठीक है, तो ये आपका LDR हो गया. उसी के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेंसर. ये पोटेंशियोमीटर है. ठीक है, पोटेंशियोमीटर, पॉट्स भी कहते हैं इसे. ठीक है, इट इज कॉमनली नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्कल्स. ठीक है, इसमें 3 टर्मिनल
होते हैं, जैसे कि 3 टर्मिनल आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहे हैं, ठीक है। और आउट ऑफ दिस 3 टर्मिनल्स, इसमें 2 टर्मिनल फिक्स होते हैं, बीच वाला टर्मिनल फिक्स नहीं होता है, या तो वो गोल घूम सकता है राउंड शेप में, और उसको आप लीनियर वे में आगे पीछे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो फिर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी चेंज फ्रॉम 0 टू अ डिफाइंड अपर लिमिट बाय जस्ट मैनुअली स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट ओवर अ रेजिस्टिव स्ट्रिप। तो या तो उसको आप राउंड वे में घुमा सकते हैं, या फिर उसको आगे पीछे कर सकते हैं लीनियर वे में, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट 0 से शुरू होती है और कुछ अपर डिफाइंड लिमिट होती है, जैसे जैसे बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इस तरह से होता है इसमें। सो एज द रेजिस्टेंस चेंजेस द करंट थ्रू द सर्किट चेंजेस। सीधी बात है, अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या उतना ही कम होगा, ठीक है। एंड हेंस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वोल्टेज भी उसका चेंज हुआ होता है, रेजिस्टिव मटेरियल का वोल्टेज भी चेंज होता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है वैसे वैसे रेजिस्टिव मटेरियल का वोल्टेज भी चेंज होता है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो भी चेंज होता है। सो द measuring instrument called the potentiometer is essentially a voltage divider used for measuring the electric potential। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है। पोटेंशियोमीटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कॉमनली कैसे करते हैं, रियल वर्ल्ड में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में इसका यूज होता है, जस्ट लाइक इन वॉल्यूम कंट्रोल में इसको यूज करते हैं, और या फिर इसको हम ऑडियो वॉल्यूम कंट्रोल जो ऑडियो इक्विपमेंट्स में होते हैं उसमें इसको हम बेसिकली यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर को। तो पोटेंशियोमीटर ये ठीक है कि पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं, जहाँ पे बीच वाला फिक्स नहीं होता है, वो राउंड वे में घूमेगा या फिर उसको लीनियर वे में घूमेगा, और उसका रेजिस्टेंस चेंज करेगा आगे पीछे करने पे, उस हिसाब से उसका वोल्टेज भी चेंज होगा, ठीक है, उसका मेजर होता है वोल्टेज। तो दिस इज द पोटेंशियोमीटर सेंसर। Next sensor is a very important sensor. This sensor is called the proximity sensor. So the proximity sensor proximity sensor का मतलब क्या है? ये सेंस करता है उसके पास के ऑब्जेक्ट्स को, उसको एक इससे पहले हमने डिस्कस किया टच सेंसर, जो कि टच करने पे उसको सेंस करता है, बट यहाँ पे टच करने की जरूरत नहीं है, यो उसको खाली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को, जो उसकी फील्ड डिटेक्ट करेंगे, उसकी फील्ड होगी, उसके उस फील्ड में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है देन उसको वो सेंस कर लेता है बाय विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, उसको टच करने की जरूरत नहीं। द प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑफन एमिट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ए बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब कि ये क्या है, इंफ्रारेड सेंसर एमिट करता है, ठीक है, और उसकी एक इंफ्रारेड सेंसर की एक रेंज होती है, उस रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है देन वो उसको सेंस कर लेता है। कैसे सेंस करता है ये देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो उसकी होती है, इंफ्रारेड की जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की फील्ड होती है, तो उसके बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके सिग्नल जो वापस जाएगा, उस ऑब्जेक्ट से जो सिग्नल वापस जाएगा उसमें कुछ चेंज होगा, उस चेंज के रिगार्डिंग ही वो पहचान जाएगा कि हमारा इस सिग्नल में कुछ चेंज है। इसकी वर्किंग हम देखेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो प्ले करना चाहते हैं इसमें। आई वुड लाइक टू प्ले वीडियो which shows that how to design a proximity sensor। प्रॉक्सिमिटी सेंसर कल भी सर ने बना के दिखाया था आपको, और आज भी मैं आपको उसमें प्ले करके दिखाता हूँ। ओके
Okay, so this is a small video of how to design a proximity sensor. Okay, you can design to yourself. Okay, Bhatti sir, are my voice is coming to you? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। Okay, शिवम गुप्ता बट शायद नेटवर्क की आपकी प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है शायद आपकी साइड से या फिर स्टूडेंट साइड पर। कभी कभी आपकी आवाज अटक जाती है और स्टूडेंट कह रहे हैं शायद आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं है, कुछ नेटवर्क इशू आपकी साइड भी है, कुछ स्टूडेंट साइड भी है। हाँ, स्टूडेंट साइड भी है, कई जगह पे आ रही होगी, कई जगह नहीं आ रही होगी। हाँ, तो आपके यहाँ आ रही है, खैर कभी कभी अटक रही है। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा क्या है, अपना साउंड थोड़ा लाउड कर दीजिए। ओके, थोड़ा साउंड लाउड कर दिए ताकि कि डबल डबल आवाज भी ना आए और इको कम हो जाए। हाँ, साउंड तो खैर पूरा लाउड है। आप माइक के थोड़ा सा पास आ जाइए आप। ये किसी ने रेज हैंड किया है, क्या क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो क्वेश्चंस हैं, वो बाद में अपन ले लेंगे। या अभी आप अभी ले लें आप। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है ये पूछा है किसी स्टूडेंट। ठीक है, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सी द स्लाइड, ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में देखिए एक इंफ्रारेड का यूज करता है ये, ठीक है। सो IoT सेंसर्स में देखो, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स में भी देखो IR सेंसर, IR का जहाँ यूज करता है इंफ्रारेड का, सो दे इट मे बी द PIR सेंसर और द AIR सेंसर। PIR sensor means that passive IR sensor and AIR sensor means the active IR sensor. तो पहले देखें कि in 1920 PIR sensor was invented by Herbert Burman। 1920 में हर्बर्ट बर्मन ने PIR sensor को इन्वेंट किया था। तो PIR sensor is an electronic sensor that measures infrared light radiating from objects in its field of view। ठीक है, this is an electronic sensor जो कि क्या मेजर करता है? इंफ्रारेड लाइट को मेजर करता है, जो कहाँ से आती हैं, जो जब ऑब्जेक्ट उसकी फील्ड में आएगा, ठीक है, उसके इंफ्रारेड के जो मेजर एमिट हो रहा है उसको मेजर करेंगे। ये अपनी तरफ से कोई भी इंफ्रारेड एमिट नहीं करता, ठीक। PIR सेंसर आर कॉमनली यूज्ड इन सिक्योरिटी अलार्म्स एंड ऑटोमेटिक लाइटिंग एप्लीकेशन में इसको यूज करते हैं। PIR सेंसर्स डिटेक्ट जनरल मूवमेंट बट डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन ऑन हु और व्हाट मूव। ये जनरल मूवमेंट तो सेंस कर लेता है कि कोई ऑब्जेक्ट इसकी फील्ड में आता है, तो उसकी इंफ्रारेड के थ्रू ये उसको सेंस कर लेता है, बट ये उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता दैट हु और व्हाट मूव अबाउट द ऑब्जेक्ट। ओनली सेंसेस ओनली कैन सेंस फॉर दैट पर्पस। और इस पर्पस से जहां पे हमें ये मालूम करना हो कि हु और व्हाट मूव, द एक्टिव वायर सेंसर इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। एक्टिव वायर सेंसर में ये अपना IR इंफ्रारेड को एमिट करता है, बट इसमें PIR में ऐसा नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट के इंफ्रारेड से उसको सेंस करता है। द टर्म पैसिव रिफर्स टू द फैक्ट दैट PIR डिवाइसेस डू नॉट रेडिएट एनर्जी फॉर सेंसिंग पर्पस। इसीलिए इसको पैसिव बोलते हैं, बिकॉज PIR डिवाइसेस के पास कोई रेडिएट एनर्जी नहीं करता अपनी और सेंस पर्पस के लिए। दे वर्क इंटायरली बाय सेंसिंग इंफ्रारेड रेडिएशन और द रेडिएंट हीट एमिटेड बाय और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उसके थ्रू जो एमिट हुई है रेडिएंट हीट, उसके थ्रू ये उसको सेंस कर लेता है, ठीक है। इस फिगर में आप देखिए, दिस इज अ PIR मोशन सेंसर यूज्ड टू कंट्रोल द आउटडोर, ठीक है। दिस इज इन फिगर यू कैन सी दैट दिस इज अ PIR मोशन सेंसर। सो नाउ सी दैट हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। PIR सेंसर वर्क कैसे करता है?
So PIR sensor can detect changes in the amount of infrared radiation impinging upon it, which varies depending upon the temperature and surface characteristics of the object in front of sensor. मतलब कि कैसे है, जैसे कि आप सेकंड में देखिए कि when an object such an person or passes in front of the background such as wall, the temperature at that point in the sensor field of view will rise from the room temperature to body temperature. मतलब कोई पर्सन अगर इसकी फील्ड में आता है तो पहले तो उसका रूम टेम्परेचर होगा क्योंकि वो रूम में लगा हुआ है, देन जैसे ही उसकी फील्ड ऑफ व्यू में कोई भी पर्सन आता है, देन उसके बॉडी टेम्परेचर को ये सेंस करता है, उसमें उसको कुछ चेंज मालूम पड़ता है, ठीक है, उसमें उसको चेंज मालूम पड़ता है और उसी को ये सेंस कर लेता है कि कोई ना कोई चीज उसके फील्ड ऑफ व्यू में आई है, क्योंकि उसके बॉडी टेम्परेचर के रिगार्डिंग उसका जो रेडिएंट हीट था वो चेंज हो गया है, रूम टेम्परेचर से उसकी व्यक्ति की रेडिएंट हीट पे चेंज हो गया। द सेंसर्स कन्वर्ट्स द रिजल्टिंग चेंज इन द इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशन इनटू चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। तो जैसे ही ये सेंसर को जो ये इंफ्रारेड जो चीज आई उसको उसमें जो चेंज मालूम पड़ता है वो उसको आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है और इसी से उसको तुरंत सेंस होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसके फील्ड में आया है। तो दिस इज द मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ दैट PIR sensor. In the figure of the slide, you can see this is an indoor light switch equipped with a PIR based occupancy. Okay, so this is a switch, indoor light switch, और यहाँ पे PIR सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये। तो अभी तक हमने बात करी है PIR सेंसर की, अब हम अच्छा आते हैं उसके आगे कि AIR सेंसर क्या होता है। AIR सेंसर स्टैंड्स फॉर द व्हाट, एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर्स। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि पैसिव इंफ्रारेड सेंसर अपनी कोई भी रेज या फिर एनर्जी वहां से अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं भेजता, एमिट नहीं करता, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की इंफ्रारेड का यूज करता है उसको सेंस करने के लिए। बट हियर इज द एक्टिव IR सेंसर। एक्टिव IR सेंसर में क्या होता है, द IR, अब इस फिगर में देखिए कि ये फिगर जो बना हुआ है आपका स्लाइड में, हियर इज एन IR रिसीवर एंड देयर इज एन IR ट्रांसमीटर। तो IR ट्रांसमीटर क्या है, IR ट्रांसमीटर इज एन LED और IR रिसीवर क्या है, IR रिसीवर जो रिसीव करेगा वो क्या है, फोटोडायोड। तो यहां से ट्रांसमिट होगी, क्या चीज ट्रांसमिट होगी, IR, ठीक है। द IR इज emitted by the IR light emitting diode or the LED and received by photodiode, ठीक है, और the photoelectric cells, ठीक है। तो during the process of sensing, radiation is altered between the process of emission and receiving by the object of interest, ठीक है। The alternation of sensing causes change in the received radiation in the, ठीक है। तो जो भी आपको ट्रांसमीटर ने IR एमिट किया है और जो उसको रिसीव कर रहा है, ठीक, उसमें कुछ चेंज होगा, ठीक। उसी के बेस पे, इस प्रॉपर्टी के बेस पे ही एक डिजायर्ड आउटपुट निकाला जाएगा जो कि इसको सेंसिंग में हेल्प करेगा। तो ये क्या है, ये अपनी तरफ से एक IR एमिट करता है। इसको देखो एक फिगर में देखते हैं, इससे अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि अब इसका पहले वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि IR वर्क कैसे करता है। तो वैसे तो AIR सेंसर दो तरह के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सेंसर होते हैं, एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर। फर्स्ट सेंसर इज ब्रेक बीम सेंसर एंड द सेकंड सेंसर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेंस सेंसर। तो ब्रेक बीम सेंसर्स कैसे काम करता है, तो ब्रेक देखो इस फिगर में आप देखो कि देयर इज एन एमीटर एंड देयर इज एन रिसीवर और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको बीच में प्लेस किया गया है, placed in such a way that the IR emitted by the emitter falls back into a receiver। तो उस ऑब्जेक्ट को हमने IR एमिटर रिसीवर में इस तरह से प्लेस किया है so that जो IR एमिट किया जा रहा है एमिटर के थ्रू वो डायरेक्ट फॉलो रिसीवर पे, ठीक है, उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया। ड्यूरिंग द ऑपरेशन IR बीम इज एमिटेड कंटिन्यूअसली टुवर्ड द रिसीवर। इस ऑपरेशन में हम IR बीम को लगातार एमिटर से छोड़ते रहते हैं, मतलब उसको एमिट करते रहते हैं। द फ्लो ऑफ IR कैन बी इंटरेक्टेड बाय प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट। अब इस फ्लो को जो रिसीवर के पास फ्लो भेज रहे हैं IR का, वो ऑब्जेक्ट रखने पे वो इंटरेक्ट हो जाएगा। इफ द IR इज ट्रांसमिटेड बट अल्टर्ड, देन रिसीवर जनरेट्स एन आउटपुट बेस्ड ऑन द चेंज इन रेडिएशन। अगर ट्रांसमिशन जो है वो अल्टर हुआ है, कुछ चेंज हुआ है उसमें, ठीक है, तो रिसीवर उसी तरह से उसका आउटपुट जनरेट कर देगा उसके में जो चेंज हुआ है, रेडिएशन जो चेंज हुआ है उसके बेस पे। Similarly, if the radiation is completely blocked by the receiver,
ये भी केस हो सकता है कि कुछ चेंज ना हो, कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया ऑब्जेक्ट में जो भी एमीटर सिग्नल भेज रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसका डिजायर्ड आउटपुट देगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें कि ब्रेक बीम सेंसर एंड कन्वेयर बेल्ट, जैसे कि इसमें फिगर में दिया है, जैसे ओपन इंटरप्ट करता है फ्लो को रिसीवर को के जाने के, तो वो किसी तरह के सिग्नल रिसीव नहीं करता, ठीक है। air flow the receiver not receive any kind of signal, then the conveyor belt stops। ये वो केस है जबकि आपको ऑब्जेक्ट जो है उसने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, तो रिसीवर के पास किसी भी तरह का सिग्नल नहीं गया, तो उसने कन्वेयर बेल्ट जो उससे अटैच है उसको स्टॉप कर दिया, तो ये सेंस करके उसने एक वर्क करना शुरू कर दिया। एक्चुएटर ने जो हमें डिजायर्ड वर्क करवाना था उसने वर्क करवा दिया बेस्ड ऑन द सेंसिंग सेंसर्स, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टाइप हो गया ब्रेक बीम सेंसर्स। ब्रेक बीम सेंसर्स ये है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टेंस सेंसर। तो ये नाम से समझ में आता है कि रिफ्लेक्ट के बेस पे काम करता है। दिस टाइप ऑफ सेंसर यूज रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्टी ऑफ आईआर, ठीक है। कैसे कैसे करता है? द एमीटर एमिट्स एन आईआर बीम विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एमीटर में जो आईआर बीम एमिट करेगा ऑब्जेक्ट पे, अब वो ऑब्जेक्ट पे करेगा तो वो ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्ट आगे आईआर आएगी उसको रिसीवर रिसीव करेगा, ठीक है, उसको सेंस करेगा। द ऑब्जेक्ट कॉजेस चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टेड आईआर और द अमाउंट ऑफ आईआर रिसीव्ड बाय द रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा? जो भी आईआर से एमीटर से जो भेजी गई थी और जो ऑब्जेक्ट से आई है उसमें अमाउंट ऑफ आईआर रिसीव में क्या चेंज आया है उसको वो जज करेगा, ठीक है। और कुछ उसमें वेरिएशन भी होगा बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। द डिग्री ऑफ चेंज इज डिपेंडेंट ऑन द रिफ्लेक्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो चेंज, डिग्री ऑफ चेंज जो हुआ दोनों में, जो एमीटर ने जो एमिट किया और जो रिसीवर के पास आया ऑब्जेक्ट पर पढ़ने के बाद, तो डिग्री ऑफ चेंज है वो दिखाएगा कि रिफ्लेक्टेंस वो उस पे बेसिस होता है कि ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेंस कितना है। अगर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेंस हाई होगा तो उसको उतना ज्यादा चेंज मिलेगा, अगर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्टेंस कम होगा तो उसमें उतना कम चेंज होगा एमीटर और रिसीवर में। तो यही इसके थ्रू ही ये मालूम कर लेता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। दस detecting the change in the amount of received IR helps in the figure out the properties of object such as surface geography or the reflectance। इसी के थ्रू ये मालूम कर लेगा कि ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्टेंस कितना है, उसके थ्रू ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को मालूम कर लेगा। तो AIR से हमें ये मालूम पड़ सकता है कि what is the object, but it is not possible in case of the passive IR sensor। तो समझ में आया? These are the AIR passive IR sensor and the active AIR sensor। Okay, this is a very simple example of AIR sensor। This is a gate where the IR infrared beams are emitted. So this is the IR field which is shown in the red। Okay, so when an object is in the range of IR, then actuator is actually with the door। This is the sensor relay जो एक्टिवेट होती है जैसे ऑब्जेक्ट इसके इस फील्ड में आता है, then the door automatically will open। Okay, so ये क्या है? This is the example of AIR, not PIR, because AIR इसमें emit कर रहा है। This is emitting the energy for sensing। तो ये हो गया आपका AIR, मतलब कि IR इंफ्रारेड सेंसर्स। अब हम उसके बाद बात करेंगे एक और सेंसर की जो है प्रेशर सेंसर। जैसे कि नाम बता रहा है इसमें कि प्रेशर सेंसर इज अ डिवाइस फॉर प्रेशर मेजरमेंट ऑफ गैसेस और लिक्विड्स। ये प्रेशर को मेजरमेंट करता है गैस के या फिर लिक्विड या फिर गैस के जो प्रेशर है उसको ये डिवाइस क्या करता है, उसको मेजर करता है। प्रेशर सेंसर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर सीएस वालों को इतना नहीं पता होगा, बट प्रेशर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ फ्लूइड फ्रॉम एक्सपेंडिंग एंड यूजुअली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को कैसे यूज करते हैं कि जितना हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगा किसी भी फ्लूइड को एक्सपेंड करने को रोकने के लिए, ठीक है, उसे प्रेशर कहते हैं। और उसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। सो प्रेशर मेजरमेंट इज द एनालिसिस ऑफ ए अप्लाइड फोर्स बाय ए फ्लूइड। तो एनालिसिस हम क्या करते हैं इसमें कि कितना फ्लूइड या फिर गैस कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसको मेजर करते हैं, इसको प्रेशर सेंसर से, ठीक है। ए प्रेशर सेंसर यूजुअली एक्ट्स एज ए ट्रांसड्यूसर। इट जनरेट्स अ सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ अ प्रेशर इम्पोज्ड। तो ये सिग्नल एज ए फंक्शन आपको आउटपुट देगा जिससे कि ये मेजर कर लेगा। तो दिस इज अ प्रेशर सेंसर व्हिच इज यूज्ड टू
to sense the pressure imposed required, the force required to stop a fluid from expanding. तो ये है आपका IoT प्रेशर सेंसर. यहाँ पे आपको फिगर में इसका IoT सेंसर का प्रेशर सेंसर भी दिखाया गया है. दिस इज द डिजिटल एयर प्रेशर सेंसर. ओके. द नेक्स्ट सेंसर is a soil moisture sensor. Soil moisture sensor, as the name implies, that here is a soil. Soil means it is somehow with the smart farming. Soil is here now. Soil moisture sensor actually measures the volumetric water content. तो इसको क्या, इसको हम इस फार्मिंग में यूज करते हैं, बिकॉज सॉइल नेम दिखा रहा है आपको यहाँ पे. किसको मेजर करते हैं कि जो सॉइल में जो मॉइस्चर होता है, जो उसकी मिट्टी में जो या फिर सॉइल जो है उसमें जितना मॉइस्चर है. मॉइस्चर क्या होगा, वाटर होगा तभी तो मॉइस्चर होगा. तो सॉइल वाटर मॉइस्चर सेंसर क्या करता है, मेजर द वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट इन द सॉइल. वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट को इसको मेजर करता है कि इस मिट्टी में या फिर सॉइल में कितना वाटर वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट है. ठीक है. तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर मेजर द वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट इनडायरेक्टली बाय यूजिंग सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. मतलब कि ये इनडायरेक्टली कोई और प्रॉपर्टी लेता है सॉइल की और उससे ये सेंस कर लेता है कि वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट क्या है. इनडायरेक्टली इसको मेजर करता है, सच एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स और द इंटरेक्शन विद न्यूट्रॉन्स एज ए प्रॉक्सी फॉर द मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है. ये किसका यूज करता है, इनडायरेक्टली कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करता है सॉइल को, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूज कर सकता है वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट को ये मेजर करने के लिए. ठीक है. ये इसकी प्रॉक्सी है इसके मेजर को, मतलब मेजर करने के लिए, वॉल्यूमेट्रिक वाटर कंटेंट मेजर करने के लिए. मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन टू हेल्प फार्मर्स मैनेज देयर इरिगेशन सिस्टम मोर इफिशिएंटली. कैसे करते हैं सॉइल मॉइस्चर, तो एग्रीकल्चर में बहुत यूज होता है, क्योंकि इरिगेशन, सिंचाई या फिर कितनी करनी है, कितना एफिशिएंट है, आपके सॉइल को कितने वाटर की जरूरत है, प्रिसिशन फार्मिंग में इसको यूज करते हैं. हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन पर्पस so that the water would not be wasted. At the same time, if soil what the quantity of water exactly you will give the water to the soil. Knowing the exact soil moisture condition on the field, farmers use the less water. Water conservation भी होता है और crop की quality भी improve होती है, because you are doing the precision farming. You are give the water to the soil as exactly as required. So besides, soil moisture sensors are used in numerous research applications, just like in irrigation planning, climate research, or the environmental research. So this is a very important sensor used in the farming and several purposes, just like in climate research also, and also in the environmental science. Okay, so this is the soil moisture sensor, and now is another sensor, pH sensor. This is also used in to just the to just the quality of the water, and is also used in the smart farming. Okay, so the pH sensor measure the level of pH in the sample solution by measuring the activity of hydrogen ions in the solution. तो pH sensor क्या करता है, pH sensor कोई आपका जो solution होगा, मतलब water solution, कुछ भी कोई solution होगा, उसमें pH कितना है उसको measure करेगा. कैसे measure करेगा, उसमें हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी कितनी है सोल्यूशन में, उसको सेंस करके, उसको मेजर करके ये उसमें पीएच, सोल्यूशन में कितना पीएच है उसको ये सेंस कर देगा. ठीक है. दिस एक्टिविटी इज कंपेयर टू द प्योर वाटर. ये प्योर वाटर की एक्टिविटी से कंपेयर किससे करेंगे, प्योर वाटर से. स्केल कहाँ तक होता है इसका, 0 से लेकर 14 तक होता है. ठीक है. ये किस लिए होता है, पीएच स्केल 0 to 14 तक. ये इसकी वाटर की या फिर कोई सोल्यूशन है उसमें एसिड कितना है, एल्कलाइन कितना है सोल्यूशन, ये उसके ऊपर होता है. आपने देखा है कि आपके घर में, सबके घर में जो आरओ सिस्टम लगा होता है फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर, देयर इज आल्सो अ पीएच लेवल. समटाइम्स पीएच लेवल शुड बी, कहीं हाई होता है, कहीं लो होता है, कहीं हाई होता है, हमें लो करना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ भी पीएच का यूज होता है. वाटर क्वालिटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है. ये एसिटिक और एल्कलाइटिक को इसको मेजर करता है, कितना एसिटिक है वाटर है, कितना नहीं है. Okay, so knowledge of pH is very useful in situation just like in chemical laboratory analysis. Okay, so pH sensors कहाँ यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में तो होता ही है, वाटर क्वालिटी में, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में होता है, क्योंकि हमें इससे वाटर की क्वालिटी मेजर होती है. स्विमिंग पूल्स में होता है, इन्वायरमेंटल लिमिटेशन में होता है,
ब्रीइंग ऑफ वाइन और बियर में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, हेल्थ केयर में होता है, क्लिनिकल एप्लीकेशंस जस्ट लाइक इन ब्लड केमिस्ट्री में होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। IoT सेंसर्स में पीएस सेंसर का, ठीक है। तो पीएस सेंसर ये था। उसके बाद एक और सेंसर आता है जो कि है आपका टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर जैसे कि नाम आपको दिखाता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी हॉटनेस है या फिर कितनी कूलनेस है, ये उसको मेजर करता है। ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या फिर ऑब्जेक्ट की कूलनेस, ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना उसमें कितना और कितना कूल है, उसको ये मेजर करता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है टेम्परेचर मीटर का या फिर टेम्परेचर सेंसर का, डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ठीक है। जो इसमें डायोड्स लगे हुए हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, उसके ऊपर ये टेम्परेचर सेंस कर लेता है। वोल्टेज है जो डायोड के आसपास, उसके बेस पे ये टेम्परेचर को सेंस करता है। सो द टेम्परेचर चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायोड रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर डायोड रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस के बेस पे ये इसका टेम्परेचर भी चेंज होता है। द कूलर द टेम्परेचर लेसर विल बी द रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें जो रेजिस्टेंस आपने इसका आएगा, जो आप इक्विपमेंट टेम्परेचर सेंसर उसमें सेंस करने के लिए रखोगे, यूज करोगे, तो उसका रेजिस्टेंस अगर कम होगा, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये टेम्परेचर का क्या है, क्योंकि अगर उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उतना ही कम होगा। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो उसी तरह से उसका टेम्परेचर भी हाई होगा। Resistance across the diode is measured and converted into the readable units of temperature and displayed in the numeric form of our readout units. तो रेजिस्टेंस जितना हमको मिल जाएगा उसके बेस पे हमें टेम्परेचर ही मालूम पड़ जाएगा और उसको हम देन कन्वर्ट किया जाएगा रीडेबल यूनिट्स में एंड देन डिस्प्लेड इन द न्यूमेरिक फॉर्म। न्यूमेरिक फॉर्म में उसको जैसे कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लेते हैं, सेल्सियस में लेते हैं, सेंटीग्रेड में लेते हैं, उसमें उसको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर सेंसर वर्क करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस और द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड्स। ओके, इन geotechnical monitoring field, these temperature sensors are used to measure the internal temperature of structure like bridges, dams, buildings, power plants. अब रियल टाइम में इसको यूज कहाँ करते हैं, रियल वर्ल्ड में इसको देखो ब्रिज में यूज करते हैं इंटरनल टेम्परेचर जानने के लिए, ब्रिजेस के, डैम्स के, बिल्डिंग्स के, पावर प्लांट्स के। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है, बिकॉज ये ब्रिजेस और डैम्स में यूज होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर इसको हम सही तरह से मेजर नहीं करेंगे देन इट वुड बहुत कुछ गड़बड़ भी हो सकता है इससे। तो टेम्परेचर सेंसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसर, ठीक है। इसको हम एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह पे इसका टेम्परेचर सेंसर का यूज है। इसका फिगर भी आपको स्लाइड में यहाँ पे दिया हुआ है सेंसर का। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंसर है आपका, दिस इज द मास फ्लो सेंसर। A mass flow sensor is a sensor used to determine the or sense the mass flow rate of the air entering the fuel injected internal combustion engine. तो ये क्या है, ये मास फ्लो सेंसर जो है, जैसे कि नेम इम्प्लाइज मास फ्लो सेंसर क्या करता है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, जो मास फ्लो रेट है एयर का जो कि फ्यूल इंजेक्टेड कंबक्शन इंजन में जा रहा है, जो इंटर कर रहा है, उसको सेंस करता है। The air mass information is necessary for engine control unit to balance and deliver the correct fuel mass to the engine. ये किस लिए यूज करता है कि हमें करेक्ट फ्यूल मास देना है इंजन को, कैसे देना है, कैसे बैलेंस करना है, तो ये एयर मास फ्लो सेंसर के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। मास फ्लो एयर के सेंसर के थ्रू हम बैलेंस कर सकते हैं और डिलीवर द करेक्ट फ्यूल मास टू द इंजन। दिस इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ मास फ्लो सेंसर. So there are two common types of mass airflow sensor in use of automatic engines. दो टाइप के होते हैं ये मास फ्लो सेंसर। The first sensor is a vane meter and the second sensor is a hot wire. ठीक है, इसमें डिस्कस, इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है then you can go on YouTube and see the videos on it. Okay, so mass flow sensor is just बहुत सारी मैकेनिकल में तो इसका यूज बहुत होता है, मैकेनिकल स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे होंगे तो इसमें इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। अब हमारा इसके बाद हम नेक्स्ट सेंसर पे आते हैं। दिस सेंसर इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक सेंसर। सो अल्ट्रासोनिक सेंसर is an electronic device that measures the distance of a target object by emitting the ultrasonic sound waves and converts the reflected sound into a electric signal. अब देखो अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है।
ठीक है। ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी, जिस ऑब्जेक्ट को इससे सेंस करना है उसकी दूरी कितनी है सेंसर से, ये इसको सेंस करता है। अब ये सेंस कैसे करता है दूरी? ये एमिट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स उस ऑब्जेक्ट पे एमिट करता है जिसकी दूरी इसको सेंस करनी है, एंड कन्वर्ट्स द रिफ्लेक्टेड साउंड इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल। और जो जो भी उसका साउंड वेव जो रिफ्लेक्ट होके आती है ऑब्जेक्ट से, उसको ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और उसको सेंस कर लेता है कि इसकी मतलब दूरी कितनी है, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, टारगेट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितनी है। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ ऑडिबल साउंड। तो ये एक जनरल सी बात है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो स्पीड है वो फास्ट होती है ऑडिबल साउंड जो कि ह्यूमन हियर करता है। ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैव टू मेन कंपोनेंट्स, दो मेन कंपोनेंट है इसमें। पहला मेन कंपोनेंट क्या है? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करेगा? एमिट करेगा साउंड को। ठीक। दूसरा क्या है? रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा? विच एनकाउंटर्स द साउंड आफ्टर इट हैज ट्रेवल टू एंड फ्रॉम द टारगेट। रिसीवर क्या करेगा? वो एनकाउंटर करेगा साउंड को जब वो ट्रांसमीटर से एमिट हुआ है और जब वो ट्रेवल होके ऑब्जेक्ट से वापस आया है रिसीवर पे। ठीक है। In order to calculate the distance between the sensor and the object, the sensor measures the time it takes between the emission of the sound by transmitter to its contact with the receiver. तो ये क्या करता है? ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है? ये टाइम मेजर करता है बिटवीन द एमिशन ऑफ द साउंड बाय ट्रांसमीटर टू इट्स कॉन्टैक्ट। एमिशन में एमिशन से लेके ट्रांसमीटर तक पहुंचने तक का जो इसका टाइम होता है उसको कैलकुलेट करके ये डिसाइड कर लेता है कि ये सेंस कर लेता है कि आपका इसमें डिस्टेंस कितनी है। देखो इसका यहाँ भी फॉर्मूला भी दिया हुआ है, d इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/2 इंटू टी इंटू सी, जहाँ पे d क्या है? d डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, t क्या है? t टाइम है, कितना टाइम लगा आने में, एमिट करके वापस आने में। ठीक है। और c क्या है? c इज द स्पीड ऑफ द साउंड। c यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड है, बिकॉज अल्ट्रासोनिक वेव्स के हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ अ साइंटिस्ट सेट अप ए अल्ट्रासोनिक सेंसर एम्ड एट द बॉक्स, अगर बॉक्स के पीस में अल्ट्रासोनिक सेंसर एम किया है और ये 0.025 सेकंड लेता है फॉर साउंड टू बाउंस बैक, यानी कि वहां से जाने पर जाके फिर वापस आने तक ट्रांसमीटर में 0.025 सेकंड्स लेता है, तो फिर उसकी डिस्टेंस कितनी होगी ऑब्जेक्ट की? तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से वो निकाल सकता है। सी तो हमको पता ही यहाँ पर है, गिवन है। टी टाइम हमको मालूम पड़ जाएगा, तो डिस्टेंस भी हमको सिंपली मालूम पड़ जाएगी। सो दिस इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड दिस इज एक्चुअली यूज्ड टू सेंस द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर? दिस इज द अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है। नेक्स्ट सेंसर we talk about, this is sensor is a smoke sensor. As name implies, that smoke sensor is a device that senses smoke, typically as an indicator of the fire. ये स्मोक सेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली आप देखते भी हैं ऑफिस में कि ये सेंसर लगा होता है। जैसे ही फायर आता है, कोई स्मोक आता है, ये इसको सेंस कर लेगा और वैसे ही हमें ये मालूम पड़ जाता है कि इसमें किस तरह की ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे फायर हो सकता है। इसको कि स्मोक आया है, स्मोक इज द symptom of the fire, maybe symptom of the fire. Smoke can be sensed either optically or by physical process. तो स्मोक को दो तरह से हम सेंस कर सकते हैं। एक तो उसका प्रोसेस होता है ऑप्टिकली या फिर फोटो इलेक्ट्रिकली, और दूसरा इसका प्रोसेस होता है आयोनाइज्ड वे में। ठीक है। कई सारे सेंसर्स ऐसे हैं जो कि या तो एक मेथड यूज करते हैं या फिर दोनों भी करते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आयोनाइज्ड जो स्मोक सेंसर जो होता है वो चीपर है, दैट इज चीपर टू मैन्युफैक्चर देन ऑप्टिकल सेंसर्स। बट इसमें दोनों में डिफरेंस है कि दे में बी मोर प्रोन टू फॉल्स अलार्म। मतलब कि आयोनाइज सेंसर जो हैं, स्मोक सेंसर जो हैं, दे में बी प्रोन टू फॉल्स अलार्म्स ट्रिगर्ड बाय नॉन हजार्डस इवेंट्स। मतलब कि ये फॉल्स अलार्म भी कई बार कर देते हैं अगर आपको इस तरह का कोई भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं है, उसके बाद भी ये अलार्म बज जाता है। ठीक है। पर ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक या ऑप्टिकल सेंसर्स में ऐसा नहीं है। ये टिपिकली आपके मोर इफिशिएंट होते हैं। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में इंक्लूडिंग फ्रांस एंड सम यूएस स्टेट्स हैव बैंड द यूज ऑफ डोमेस्टिक आयोनिक स्मोक अलार्म्स बिकॉज ऑफ द कंसर्न दैट दे आर नॉट रिलायबल इनफ एज कंपेयर टू द अदर टेक्नोलॉजीज। तो आप ये समझ लीजिए कि यूएस और बहुत सी कंट्रीज में इस तरह के आयोनाइज्ड स्मोक सेंसर्स को बैन भी किया गया है, बिकॉज ये किसी तरह का हर बार सही आपको इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं
कई बार ये फॉल्स अलार्म भी ट्रिगर कर देते हैं, ठीक है। इन मेनी केसेस फायर इन द अर्ली स्टेज हैव नॉट ऑलवेज बीन इफेक्टिवली सेंस। अगर कोई फायर होने वाली है तो हमें बहुत जल्दी स्मोक को सेंस करना चाहिए, अदरवाइज अगर फायर अगर फैल जाती है उसके बाद सेंसर में काम करता है और तब मालूम पड़ता है हमको कि ये यहाँ पे फायर है, तो उसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो हमें अर्ली स्टेज में उसको सेंस भी करना है। तो ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इसमें अच्छा होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर इज जनरली मोर रिस्पॉन्सिव टू फायर्स दैट बिगिन विद द लॉन्ग पीरियड ऑफ स्मोल्डरिंग। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर आर जनरली यूज्ड, दे आर लिटिल बिट कॉस्टली, बट क्योंकि वेरी इफिशिएंट होता है ये और अर्ली सेंस कर लेता है, तो इसीलिए हम उसको फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का यूज करते हैं। इस फिगर में, स्लाइड में आपको ये सेंसर का फिगर भी दे रखा है, ठीक है। दिस इज ऑन द वॉल, रूफ वॉल, ओके। सिमिलरली नाउ अब हम आते हैं एक और सेंसर पे। दिस सेंसर इज कॉल्ड द एल्कोहल गैस सेंसर। सो एल्कोहल गैस सेंसर इज अ लो कॉस्ट semiconductor sensor which can detect the presence of alcohol gases at the concentration from 0.05 mg to 10 mg per liter। मतलब कि अल्कोहल गैस सेंसर, जैसा कि नेम एम्प्लॉयज यहाँ पे कर रहा है, कि ये किसके लिए सेंस करने के लिए होता है। ये सेंस करने के लिए होता है अल्कोहल गैस के कंसंट्रेशन को, अल्कोहल गैस के कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल गैस कंसंट्रेशन को, प्रेजेंस को ये सेंस करता है। द सेंसिटिव मटेरियल, अब इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है इस सेंसर में, जो हम मटेरियल यूज करते हैं क्या सेंस करने के लिए, अल्कोहल गैस सेंसर को यूज करने के लिए, वो होता है SnO2 whose conductivity is lower in the clean air। मतलब कि इसकी कंडक्टिविटी, अगर आपका एयर क्लीन होगा तो इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। कंडक्टिविटी कम होने से क्या होगा, ये बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे ही ये कोई भी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा आपके इन्वायरमेंट में, जैसे ही अल्कोहल गैस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये इतना सेंसिटिव होता है कि ये उसको सेंस कर लेता है और इसका कंडक्टेंस जो होता है बढ़ जाता है। तो इट हैज अ वेरी हाई सेंसिटिव टू अल्कोहल एंड हैज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बेंस ड्यू टू स्मोक, वेपर और गैसोलीन। दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स बोथ डिजिटल एंड द एनालॉग आउटपुट। तो यहाँ पे जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है is based on the sensitive material which is SnO2. SnO2 is very sensitive to the alcohol gases as well as the smoke, vapor and gasoline too. तुरंत ही ये उसके रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है। तो द अल्कोहल सेंसर, ये बहुत ही इजीली माइक्रो कंट्रोल से भी आप इसको इंटरफेस कर सकते हैं, आर्डिनो बोर्ड से भी कर सकते हैं, IoT पर्पस से रास्पबेरी पाई पे भी कर सकते हैं। द अल्कोहल सेंसर MQ3 is also suitable for sensing alcohol concentration on a breath just like your common breath analyzer। ये आपकी breath के concentration को भी बहुत जल्दी measure कर लेता है। It has a very high sensitivity and a very fast response time. This sensor provides an analog resistive output based on the alcohol concentration। ये आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों ही आउटपुट दे सकता है। तो दिस इज अ अल्कोहल गैस सेंसर जहाँ पे SnO2 हम मेटल यूज करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेंसर इज अ वाटर फ्लो सेंसर। एज अ नेम एम्प्लाइज दैट द वाटर फ्लो सेंसर क्या करेगा आपको, दिस मेजर्स द फ्लो ऑफ वाटर। दिस इज यूज्ड टू मॉनिटर द अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग सप्लाइड एंड यूज्ड। कितना अमाउंट हमको सप्लाई करना है और कितना यूज हो रहा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हैज टू बी मेजर। हमें अगर ये मेजर करना है कि हमें किसी जगह पे कितना वाटर सप्लाई करना है और वहाँ कितना यूज हो रहा है, तो हम ये कैसे मेजर कर सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करना है और कितना यूज होगा। तो ये बहुत जगह यूज होता है, जस्ट लाइक आपको पब्लिक वाटर सप्लाई में भी इसको यूज होता है, ताकि उसको ये मालूम पड़ सके पब्लिक वाटर supply that how much water is required and how much water is used to meet the requirement of the public, ठीक है। तो वाटर फ्लो सेंसर इसलिए भी यूज होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इसके अंदर एक प्लास्टिक वाल्व लगा होता है, उसके थ्रू वाटर पास होता है। वाटर रोटर along with this hall effect sensor is present to sense and measure the water flow, ठीक है। इसके अंदर एक हॉल इफेक्ट सेंसर भी होता है, ठीक है। जब इसके थ्रू आप वाटर फ्लो होगा, रोटर जो लगा होगा, रोटर वो वाटर फ्लो के साथ वो घूमने लगेगा। फिर जो उसमें हॉल इफेक्ट सेंसर होगा वो उसके स्पीड के बेस पे वाटर फ्लो को मेजर कर लेगा। हॉल इफेक्ट सेंसर उसके स्पीड घूमने के बेस पे ये सेंस कर लेगा कि कितना वाटर फ्लो हो रहा है। बाय दिस द चेंज कैन बी ऑब्जर्व इन द स्पीड ऑफ मोटर। जो अंदर मोटर लगा है वो किस स्पीड से घूम रहा है,
रोटर उसके उसमें कितना चेंज हुआ है, उसके बेस पे वो हॉल इफेक्ट सेंसर से मालूम कर लेगा कि इसमें कितना वाटर फ्लो हो रहा है. दिस चेंज कैन बी कैलकुलेटेड एज आउटपुट एज अ पल्स सिग्नल बाय हॉल इफेक्ट सेंसर. तो इसमें हम हॉल इफेक्ट सेंसर का अंदर यूज करते हैं, क्योंकि उसी से उसका जो स्पीड है रोटर की, उससे उसकी स्पीड मालूम पड़ेगी, जिसके थ्रू हम मालूम करेंगे कि वाटर का फ्लो कितना है. ठीक है, तो जैसे कि हॉल इफेक्ट सेंसर देखा है यहाँ पे, हॉल इफेक्ट सेंसर का इसमें डिवाइस में यूज किया. तो ये सिंपली क्या करता है, हॉल इफेक्ट सेंसर आर यूज फॉर द स्पीड को करता है, सेंस करता है, और पोजिशनिंग को सेंस करता है, प्रॉक्सी सेंसिंग को यूज करता है. ठीक है, तो हॉल इफेक्ट सेंसर आर कॉमनली यूज टू मेजर द टाइम द स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन सॉफ्ट रोटेट्स. उसमें कितना टाइम लगता है, इसकी स्पीड क्या है व्हील्स की, उसके थ्रू ये सेंसर उसको सेंस करता है, और इसको हम वाटर फ्लो सेंसर में यूज करते हैं टू मेजर द एंड टू सेंस द फ्लो ऑफ द वाटर. Okay, so this is the working principle of Hall effect sensor. Next sensor is the rain sensor. The rain sensor is used to detect or the sense the rain. उसको रेन को सेंस करने के लिए इसको करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है, क्योंकि कई बार हमको रेन के वाटर को कंजर्व करना होता है हार्वेस्टिंग के लिए, सिंचाई के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कंजर्व कर सकते हैं. रेन हमको सेंस करके, अगर सेंस करके बताएगा तो हम इसको वाटर के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, अंडर ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, इरिगेशन पर्पस में इसका बहुत यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में इसका बहुत यूज होता है. वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है इसका, is work like a switch, and the working principle of this sensor is whenever there is a rain, the switch will be normally closed, and rain होगा तो ऑन हो जाएगा. तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है. रेन सेंसर इज यूज्ड टू, as name implies, to detect the rain. Next sensor is a very important sensor. This sensor is called the color sensor. Color sensor, as name implies, that this sensor is used to sense the color of the object. Okay, the color sensor is a type of photoelectric sensor which emits light from the transmitter and then detects the light reflected back from the object with the receiver. ये क्या करता है, ये लाइट एमिट करता है ट्रांसमीटर इसका, और जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जिसका हमें कलर मालूम करना है रिसीवर से, उसके ऊपर ये, उसके बेस पे ये चेक करता है. अभी हम देखेंगे कैसे करता है. कलर सेंसर सेंस कर सकता है इंटेंसिटी ऑफ रिसीव लाइट. ये रेड, ब्लू और ग्रीन तीन लाइट की इंटेंसिटी को ये रिसीव करता है. रिसीव लाइट इंटेंसिटी फॉर रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर, मेकिंग इट पॉसिबल टू डिटरमाइन द कलर ऑफ टारगेट ऑब्जेक्ट. इसके थ्रू ये तीन लाइट सेंस कर इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी है रेड, ब्लू और ग्रीन को, उसको मेजर करके ये मालूम कर लेता है कि टारगेट ऑब्जेक्ट का कलर क्या है. ठीक है, तो ये दो तरह के सेंसर्स होते हैं ये कलर सेंसर. पहला क्या होता है, पहला सेंसर किस पे काम करता है, पहला सेंसर में क्या होता है, पहले सेंसर में हम ऑब्जेक्ट पे एक ब्रॉड वेवलेंथ लाइट डालते हैं. ठीक है, एंड डिफरेंशिएट द थ्री टाइप्स ऑफ कलर इन द रिसीवर. दूसरे टाइप ऑफ सेंसर में क्या होता है, हम तीनों तरह की लाइट डालते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन अलग अलग. ठीक है, उसके बाद हम उसकी इंटेंसिटी के बेस पे उसको ऑब्जेक्ट के कलर को मालूम करते हैं. जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल आप देख लें, यहाँ पे आपके दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो सिनेरियो दिए हुए हैं. इस सिनेरियो में पहले वाले में भी हमने तीन बीम्स डाली हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और इसमें भी आपको तीन तरह के लाइट के डाले हैं RGB. ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, पहला नीचे वाला ऑब्जेक्ट इज अ व्हाइट ऑब्जेक्ट एंड ऊपर वाला ऑब्जेक्ट इज अ रेड ऑब्जेक्ट. If the light containing the red, blue and green wavelength is shown on the red object, only red light. देखा आपने कि ऊपर वाले फिगर में अगर तीनों ही डाले गए हैं ऑब्जेक्ट, RGB रेड ऑब्जेक्ट में डाला गया है, तो हमें जो एमिट हो रहा है वो खाली रेड लाइट होगी. लेकिन अगर हम व्हाइट ऑब्जेक्ट पे RGB को प्लेस करते हैं, तो ये क्या है, RGB कलर्स, तो फॉर द व्हाइट ऑब्जेक्ट थ्री कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, खाली एक नहीं हो रहा रिफ्लेक्ट, R भी हो रहा है, G भी हो रहा है, और यहाँ पे आपका यानी ब्लू भी हो रहा है. पर इनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस है. इंटेंसिटी को हमें काउंट करना है कि अब जो रिफ्लेक्ट होके इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी इंटेंसिटी काउंट होगी तभी हमें मालूम पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या है. जैसे कि आप इस फिगर में देख लो, ये कलर सेंसर है. इस फिगर कलर सेंसर का टेबल है, इसमें देखो ऑब्जेक्ट के कलर दिए हुए हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक. अब इसमें आप देख लीजिए कि अगर येलो पे, सपोज हम येलो लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट का कलर येलो है और इसमें हम RGB लाइट्स डालते हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कौन कौन सी होंगी, रेड होंगी और ग्रीन होंगी. उसके अलावा अगर हम ग्रीन पे डालते हैं तो खाली ग्रीन लाइट ही आएगी. ग्रीन ऑब्जेक्ट पे अगर हम RGB डालते हैं तो उसमें खाली ग्रीन लाइट ही आएगी.
इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कलर सेंसर. ओके, हम अब लास्ट सेंसर पे आ रहे हैं इस पीपीटी के. दिस इज कॉल्ड द टिल्ट सेंसर. A tilt sensor is an instrument that is used for measuring the tilt in the multiple axis. Tilt sensor बहुत ही easy है और आप जनरल वे में इसको यूज भी करते हो. जैसे कि आपको ये फ्लाइट मोड में, फ्लाइट में भी इसको यूज करते हैं टू नो द एक्चुअली कितना घुमाना है फ्लाइट को, क्या करना है. ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होती है उसके बेस पे ये मालूम कर लेता है टिल्ट सेंसर कि हमें अब किस डायरेक्शन में जाना है फ्लाइट को. इसमें ये सब बहुत जगह यूज करते हैं इसको. ठीक है, तो टिल्ट सेंसर मेजर द टिल्टिंग पोजीशन विद रेफरेंस टू द ग्रेविटी एंड आर यूज्ड इन न्यूमेरस एप्लीकेशन. ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, ओरिएंटेशन और इंक्लिनेशन में इसको यूज करते हैं. ठीक है, बहुत सी एप्लीकेशन में इसको यूज करते हैं. इसका देखो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. ये दो सेंसर यहाँ पे देखो, ये टिल्ट सेंसर दिया हुआ है. टिल्ट सेंसर में एक मेटेलिक बॉल होती है. ठीक है, इसमें 2 पिंस लगे हुए हैं जहां से करंट फ्लो होता है. 2 पिंस इंस्ट्रूमेंट में लगे हुए हैं. ये ऑन होंगे जब ये बॉल उससे टच होगी. ठीक पोजिशन. इफ द सेंसर, अगर हम इसको टिल्ट कर देंगे, घुमा देंगे, टिल्ट सेंसर को घुमाएंगे, वैसे ही बॉल यहाँ से चली जाएगी. जब बॉल यहाँ से हटेगी, टच से हटेगी, वैसे ही इसका जो है करंट फ्लो होना कम हो जाएगा. दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द टिल्ट सेंसर. ओके, यही हमने बताया कि करंट फ्लो नहीं होगी, जैसे ही आपका जाएगा वैसे ही हो जाएगा. सो इट विल गिव द डिजिटल इंफॉर्मेशन टू द आर्डिनो. ये आर्डिनो से कनेक्ट होगा, उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन ये पास करेगा कि आपका आइदर हाई है और लो है. हाई मतलब करंट फ्लो, लो नहीं तो करंट फ्लो नहीं हो रही है. तो ये आपका क्या है, ओरिएंटेशन में, फ्लाइट्स वगैरह में बहुत यूज होता है इसका टिल्ट सेंसर का. सो ये अभी हमने बहुत सारे सेंसर डिस्कस किए हैं. तो मैं ये असाइनमेंट है एक टाइप का ही है कि जैसे हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया स्टार्टिंग में, तो आपको इस सेंसर को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये सेंसर किस तरह का है. ये सेंसर से एनालॉग आउटपुट आ रहा है कि डिजिटल आउटपुट आ रहा है. ये सेंसर किस तरह से इनपुट आउटपुट को कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, जब आप सेंसर को पढ़ेंगे तो आप इस सेंसर्स को क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा सेंसर किस क्लासिफिकेशन में आता है. तो ये आपका एक असाइनमेंट है, ये आप करिएगा और इससे आपको काफी मालूम पड़ जाएगा कि सेंसर्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है इसकी. ठीक है, तो सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन. इफ any kind of queries by your side, welcome. Bhatti sir. जी सर. Okay sir, session is over. If any kind of query by the students, they can ask. One student have asked the question. Let me scroll down. Yes, Nitin Pandey. Yes Nitin, हाँ सर, ये मैं ये पूछ रहा था जो अभी वीडियो सर ने क्वेरी था अपना पूछो. हाँ सर अभी आपने जो वीडियो दिखाया था, प्रॉक्सिमिटी सेंसर बना रहा था, उसमें एनपीएन यूज किया था ट्रांजिस्टर. भाटी सर आप इसके रिप्लाई कर दीजिए. गुप्ता सर आप अपना स्लाइड शो एक बार खत्म करें. प्रॉक्सिमिटी आंसर देता हूँ. अच्छा स्लाइड शो खत्म करता हूँ. ओके, स्लाइड शो एक बार एंड करें. ओके. सो मेरा स्क्रीन विजुअलाइज हो रहा है सर आपको? हाँ, आपकी पीपीटी आ रही है इसमें. नितिन स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर. ओके, सो हमारा क्वेश्चन था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या है. सी बेसिकली देयर आर 2 पॉपुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. वन इज एनपीएन एंड सेकंड इज पीएनपी. सर आई नो एनपीएन ट्रांजिस्टर, बट आई एम आस्किंग अबाउट जो सर ने अभी वीडियो दिखाया था प्रॉक्सिमिटी सेंसर का बनाने का, तो उसमें जो 2 बीजेटी यूज किया था वो एनपीएन था कि पीएनपी था सर? मैं ये पूछ रहा था. मोस्टली एनपीएन यूज में आता है मोस्टली. और बीजेटी अगर आ गया तो इट मींस वो 100% तुम्हारा एनपीएन ट्रांजिस्टर ही होगा, पीएनपी नहीं. ओके सर. वन मोर क्वेश्चन. और इसका इजीली अगर तुम चाहते हो तो सीधा सा तरीका है. अगर तुम चाहते हो कि जब बेस के ऊपर करंट अप्लाई हो तब तुम्हारा सर्किट ऑन हो जाए और बेस के ऊपर करंट अप्लाई ना हो तो सर्किट ऑफ हो जाए, तो हमेशा एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज में आएगा. और तुम चाहते हो कि जब बेस के ऊपर करंट अप्लाई हो तब ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाए, मतलब जस्ट रिवर्स ऑपरेशन. यस सर. ठीक है, तो वहां तुम पीएनपी यूज में लो. ओके सर. सिंपल सा तरीका आइडेंटिफिकेशन का, अगर पीएनपी लेना है या एनपीएन लेना, दोनों का यूज मतलब पर्पस एक ही है, बट उनका ऑपरेशन अलग अलग है. कि बेस पर अगर करंट अप्लाई करते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है. यस सर. ओके सर. ओके, एनी मोर क्वेरी? यस सर, वन मोर. सर अभी अल्ट्रासोनिक सेंसर में सर ने बताया था कि जो फॉर्मूला था D = ½ T × C, तो T टाइम एंड C स्पीड ऑफ साउंड.
तो सर यहाँ पे तो अल्ट्रासोनिक साउंड निकल रही है, तो अभी सर ने बताया था कि स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। ओके, तो वो उसका पूरा इक्वल नहीं होगा, मतलब उसमें आप देखो सिंबल लगा हुआ है। अच्छा, तो सर यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स का साउंड क्यों नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ क्यों स्पीड ऑफ जो साउंड है उसको लिया जा रहा है? 343 मीटर पर सेकंड जो था सर। कौन सा चलो स्लाइड सर, एक बार स्लाइड शेयर करेंगे सर? क्या हाँ 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 हाँ, स्लाइड शेयर करता हूँ मैं, एक मिनट। अल्ट्रासोनिक सेंसर दिस। यस सर, ये। ओके, तो सर यहाँ पे जो सी का यूज है, सी तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड है, बट हमको इंस्टेड ऑफ साउंड के वेव वो स्पीड को अल्ट्रासोनिक हाँ, वेव के अल्ट्रासोनिक स्पीड का ही साउंड का आएगा, बट इसमें अप्रोक्सीमेट 343 मीटर्स पर सेकंड ले रखा है। अप्रोक्सीमेट लिया गया है ये, कोई अप्रोक्सीमेट है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट ले रखा है। तुम चाहो तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक की का रेंज भी ले सकते हो। ओके सर, अगर एक्यूरेटली कैलकुलेट करना तो अल्ट्रासोनिक का ही आएगा। ओके सर, थैंक यू। Any more queries from student side? Yatendra? Yes, sir. हाँ, पूछो बेटा क्वेश्चन। So, what's the maximum range of ultrasonic sensor? What is the maximum Range of ultrasonic sensor. Practically it is up to 5 to 7 meters. ठीक है, जो 5 to अपन 7 लैब meter. पर्पस के लिए यूज में लेते हैं, लैब पर अभी ये तुम्हारे सामने जो डेमोन्स्ट्रेटेड है, प्रैक्टिकली अगर इसको यूज में लोगे 5 to 7 मीटर्स तक ये ऑपरेट करता है। ठीक है, और अगर तुम इसका कमर्शियल वर्जन अगर नेट पर अगर परचेज करोगे तो वो अप्रोक्सीमेट 10 to 20 मीटर्स तक कवर कर सकता है। ठीक है, तो अगेन इट डिपेंड कि इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किस तरह से किया गया है। ठीक है, ये केवल एक लेबोरेटरी पर्पस या एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए सेंसर अवेलेबल है, इसलिए इसका कवरेज एरिया एट मोस्ट 5 to 7 मीटर्स होगा। ठीक है, Okay, sir. So, I also have another question, sir. Hello. पूछो यतेंद्र। यस, आई कैन लिसन टू यू। यस Yes, sir. मैं ये पूछा था, जो proximity sensor होता है और IR sensor होता है, उसमें डिफरेंस क्या रहता है? एक्चुअली प्रॉक्सिमिटी सेंसर जस्ट एक टर्म है कि आप किसी की प्रेजेंस चेक कर रहे हैं। इसको इंप्लीमेंट करने के दोनों तरीके, आप अल्ट्रासोनिक सेंसर से भी आप प्रॉक्सिमिटी चेक कर सकते हैं और आईआर सेंसर से भी प्रॉक्सिमिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है कि आप आईआर से उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं या अल्ट्रासोनिक से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर परचेज करने जाएंगे मार्केट में तो आपसे पूछेगा कि आपको एक्टिव सेंसर लेना है या पैसिव सेंसर लेना है। ठीक है, आप वहां डिफाइन करेंगे कि आपको आईआर सेंसर बेस्ड लेना है या अल्ट्रासोनिक बेस्ड सेंसर लेना है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी केवल आपकी डिस्टेंस और आपके मूवमेंट को चेक करता है, एक जनरल टर्म है प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, इस इंप्लीमेंटेशन आप चाहे तो आईआर से कर सकते हैं, चाहे अल्ट्रासोनिक से कर सकते हैं। Okay, sir. ठीक है, एनी मोर क्वेरी? सर, अब आपकी आवाज कट रही है। किसकी, मेरी? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ, तो क्लियर हो गया बेटा तुम्हें मैंने जो बताया? हाँ सर, रिपीट यस करूं? सर, क्लियर हो गया, ओके। क्लियर ना हो तो दोबारा भी देख सकते हाँ, हो क्लियर ना हो अपने। तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा। नहीं सर, यस सर, क्लियर है सर। ओके सर, मतलब सर ओनली एक जनरल टर्म है ना, अगर कोई डिफरेंस नहीं होता ना। हाँ, ऐसा कोई नहीं है, जनरल टर्म है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जस्ट एक जनरल टर्म है, इसको आप इंप्लीमेंट किसी से भी कर सकते प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या, आप अगर देखो तो इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये प्रॉक्सिमिटी मतलब सेंस करेगा कि उसको इसके फील्ड में, जो उसका फील्ड है उसमें कोई ऑब्जेक्ट आया है, उसको सेंस करके ये Yes. इसकी प्रॉक्सिमिटी है। बेसिकली डिस्टेंस मेजर करते हैं कि आपकी जो रेज है वो टकरा करके आपके पास आ रही है, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के उस रेंज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है क्या। तो वही चीज आप आईआर से भी कर सकते हैं, वही चीज आप अल्ट्रासोनिक से भी कर सकते हैं, वही चीज आप सोनार सेंसर से भी कर सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग रेंज के ऊपर जाऊंगा तो मुझे सोनार सेंसर यूज में लेने पड़ेंगे। ओके, जैसे तुमने कहा कि सर इसकी ऑपरेटिंग रेंज कितनी होती है, तो आईआर की तुम्हारी बहुत कम होती है। आईआर की इवन तुम्हारी 1 मीटर भी नहीं होगी, ठीक है, कुछ इंचेस में होगी आईआर सेंसर अगर यूज में लेता हूँ। अल्ट्रासोनिक लूंगा तो वो मीटर्स में चली जाएगी, और अगर यही मैं सोनार सेंसर यूज में लेता हूँ तो किलोमीटर्स में चली जाएगी। ओके, तो अगेन डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिकली उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी को यूज में लेते हुए उस सेंसर को बना रहे हैं आप। ओके ओके सर। सर ये मास एयर फ्लो वाला सर सेंसर समझ में नहीं आया था। कौन सा? मास एयर फ्लो सेंसर।
गुप्ता जी एक बार स्लाइड करना। मास एयर फ्लो सेंसर, ये दिस इज अ मास एयर फ्लो सेंसर। यस सर। कौन सी ब्रांच के हो तुम? मैकेनिकल के हो? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिकल वो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसको हम दिस इज बेसिकली फॉर ऑटोमोबाइल इंजन्स, ठीक है, ऑटोमोटिव इंजन्स के लिए यूज में आता है ये। ठीक है, कि जो आपके इंजन है, इंजन में कितना थ्रस्ट जा रहा है, कितना आपका एयर फ्लो हो रहा है आपके इंजन के अंदर, वहां उसको सेंस करने के लिए यूज में आता है। बेसिकली आपके जो इंजन होता है, इंजन के अंदर जो फ्यूल बर्न होता है, तो वहां जो एयर होती है इस प्रोपोर्शन रेशियो के अंदर पास करनी पड़ती है, ताकि कि फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा हो। कम फ्यूल के अंदर आपका ज्यादा एवरेज आए गाड़ी का। तो वहां ये सेंसर्स लगाए जाते हैं आजकल कुछ गाड़ियों के अंदर, जिससे वो पर्टिकुलर जो फ्यूल है उसमें पर्टिकुलर उस क्वांटिटी के अंदर एयर को फ्लो करवाते हैं, ताकि आपका जो कंबशन है वो ऑप्टिमल वे के अंदर हो और कम फ्यूल के अंदर तुम्हारे इंजन को मैक्सिमम पावर अवेलेबल हो पाए। ओके, तो वहां यूज में आता है मास फ्लो सेंसर। ओके सर, ओके सर, ओके सर। एनीथिंग मोर स्टूडेंट, एनी क्वेरी? फर्दर वी आर अवेलेबल। तो मैंने कुछ सेंसर्स की लिस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की है, तो अगर आप परचेस करना चाहें तो ये इजीली अमेजन के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। और इन आई थिंक इन सेंसर से आपका काफी कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके घर पे आप ले पाएंगे और एक्सपेरिमेंटल पर्पस आप अपने घर पे कर पाएंगे। तो अगर आप चाहें, इफ यू विश, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो सब्सिक्वेंट लैब सेशंस आएंगे उनके अंदर यही इक्विपमेंट्स या यही कंपोनेंट्स यूज में आएंगे आपके। सर मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। हेलो। यस यस। हाँ, आपके नेस्कॉम का सर्टिफिकेट इसमें मिलेगा अगर आप इसका एग्जामिनेशन क्लियर करते हो, ठीक है। नेस्कॉम आप देख लेना, नेस्कॉम गवर्नमेंट संस्था है, ठीक। ये आपको चांस मिला है, आपको सीखने का तो चांस है ही, साथ साथ में आपका एम होना चाहिए कि आपको नेस्कॉम का एग्जामिनेशन पास करना है। नेस्कॉम का एग्जाम इजी नहीं होता है, क्वेश्चंस टिपिकल होते हैं। सो प्रैक्टिकल तो हमें करना ही है, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी को भी देखना है, बिकॉज एग्जामिनेशन थ्योरी बेस्ड ही, ठीक है। तो हमें दोनों दोनों चीजों को लेके चलना है, प्रैक्टिकल को भी लेके चलना है, थ्योरी को भी लेके चलना है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल करोगे, थ्योरी नहीं करोगे, तो उसमें भी आपका एग्जाम निकालने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका कोर्स डेवलप हुआ है, दिस इज बेस्ड ऑन द 50-50 रेशियो अकॉर्डिंग टू NASSCOM, ओके। सो यू हैव टू फोकस ऑन बोथ पर्सपेक्टिव। ओके सर, थैंक यू। शायद कोई क्वेश्चन ने हैंड रेज किया है। यस सर। सर ESP8266 नोड MCU की जगह पे सर ESP32 यूज कर सकते हैं? हाँ, ESP32 यूज में आ सकता है, बट एक्चुअली ESP32 के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। सर नोड रेस्ट्रिक्शन ये MCU मेरा हीट कर रहा है कुछ थोड़ा ज्यादा, इस वजह से नहीं, ये मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्चुअली ESP8266 जो नोड MCU IC है, इसके अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल पिन्स अवेलेबल हो पाती है, ठीक है। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि छोटा मोटा अगर मैं आर्डिनो इम्प्लीमेंटेशन ESP8266 पे करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ, ओके। जबकि ESP32 जो IC है वो तुम्हारा केवल वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। वहां तुम ये काम नहीं कर सकते हो कि मैं वहां कोई सेंसर कनेक्ट करूं और उस सेंसर की रीडिंग में उस ESP32 पे ले पाऊं, वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैंने जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में मैंने नोड MCU मंगाया, क्योंकि नोड MCU से ESP32 का भी काम हो सकता है, जबकि ESP32 से नोड MCU वाला काम नहीं हो सकता। और प्राइस दोनों की सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-20 रुपए का डिफरेंस आता है। नहीं सर, ये नोड MCU है 150 का आ रहा है और ESP32 450 का आ रहा है। नहीं, तुम थोड़ा सा उसको देखोगे तो कुछ कम रेंज के सर अंदर मैंने मिल जाएगा। ऑफलाइन खरीदा था सर। आप एक चेक करना अमेजन पे और किसी दूसरी साइट्स पे भी आप चेक करना, इतना महंगा नहीं है, क्योंकि 450 का तो इटसेल्फ आपको आर्डिनो बोर्ड मिल जाएगा। सर ESP32 में सर 60 पिन दिए हैं, उसमें 8 है नोड MCU में, इस वजह से। चलो मैं एक बार चेक करके इसका लिंक भेज दूंगा नोड MCU का, और मुश्किल से ये 200 रुपए के आसपास तुम्हें मिल जाएगा, 200 से महंगा नहीं आएगा, 200 के आसपास मिलता है। सर नोड MCU सर 150 के आ रहा है। नोड MCU कितना आ रहा है? 150 का सर, लखनऊ में। हाँ, तो ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, आप परचेस करके वहां से ऑपरेट कर सकते हैं। अमेजन पे महंगा मिल रहा है ऐसा? यस सर। ऑफलाइन ऑनलाइन सर सारे सेंसर्स और सारे इक्विपमेंट महंगे मिल रहे हैं।
तो मे भी अभी हो सकता है लॉकडाउन के कारण महंगा आ रहा हो, तो ठीक है अभी आप ऑर्डर ना करें अगर ऐसा है तो। और जो स्टूडेंट अगर लखनऊ में अवेलेबल है तो लखनऊ से परचेस कर लें, या फिर एक काम करें लखनऊ से परचेस करके उनको अपने फ्रेंड्स को कुरियर कर दे। आई थिंक वो ज्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन होगा। यस सर। कुरियर या डाक के थ्रू भेज दे, कोई भी एक बच्चा कोऑर्डिनेट कर ले, और जो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट परचेस करना चाहे आप रेट बता दें। इवन आप बल्क में खरीदोगे तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तरह से कर ले तो दोनों तीनों का काम हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। एनीथिंग मोर? नो सर, थैंक यू सर। यस सर। बोलो बेटा। यस सर, क्वेश्चन है सर एक। बोलो बोलो, पूछो। सर अभी सर ने टच सेंसर के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो उसके दो पार्ट्स बताए थे, एक कैपेसिटी पे और एक प्रेशर के बेस पर। हाँ, तो सर एक प्रेशर का तो मेरे समझ में आ रहा है कि वो कैसे वर्क करेगा, कि प्रेशर के अकॉर्डिंग आप वो उस चीज को सेंस करेगा, लेकिन सर वो कैपेसिटिव सेंसर कैसे वर्क करेगा वो समझ नहीं आ रहा। देखो, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन तुम लोगों ने देखी है? हाँ सर देखिए। तुम जहां टच करते हो सिस्टम को पता लग जाता है। एग्जैक्टली उसी फिनोमेना के ऊपर कैपेसिटिव सेंसर काम करता है। एक्चुअली होता क्या है कैपेसिटिव सेंसर में, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स फ्लोट होते हैं। जैसे आप उस कैपेसिटिव सेंसर को टच करते हैं तो वो जो चार्ज पार्टिकल्स है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होने लग जाते हैं। तो एक्चुअली आपका जो सेंसर है, सेंसर ये कैच करता है कि कहाँ चार्जेस का लॉस हुआ है। जिस जगह चार्जेस का लॉस हुआ है उसको आइडेंटिफाई हो जाता है इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आपने टच किया। ओके सर। ठीक है ना? जैसे आप अगर अपने हैंड के अंदर पॉलिथीन पहन करके देन उसको टच करोगे तो वो टच सेंसर काम नहीं करेगा, बट आप अपने नेकेड फिंगर से अगर उसको टच करोगे तो वो काम कर जाएगा, क्योंकि अपनी जो ह्यूमन बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज का कंडक्टर होती है, इसलिए करंट फ्लो होता है। तो जैसे आप उसको टच करेंगे वहां आपके जो चार्ज हैं वो डेसिपेटेड हो जाएंगे आपके फिंगर्स के थ्रू बॉडी के अंदर, और वहां चार्जेस का लॉस होगा और आइडेंटिफाई कर लेगा सेंसर की यहाँ चार्ज का लॉस हुआ है, इट मींस यहाँ आपने उसको टच किया। सर क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, थैंक यू सर। ओके ओके, ग्रेट। एनी मोर? Any more query from student side? Yes sir. Okay, just सर जो PIR सेंसर होता है सर, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया। PIR सेंसर कैसे वर्क करता है उसका प्रिंसिपल बताना है। यस सर। पैसिव सेंसर में सर, not passive, he is talking about PIR sensor. यस सर। PIR तो वही हो गया ना, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। यस सर, यस सर। just a moment. कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था PIR सेंसर। आपके स्लाइड में है क्या सर PIR सेंसर? सर मैं इन्हें बता रहा हूं मैं। देखो, पैसिव IR था और क्या था आपका, एक्टिव IR था। तो पैसिव IR में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट उसकी फील्ड में आता है, ठीक है, वो अपनी तरफ से कोई भी IR बीम नहीं देगा। ठीक, वो जो ऑब्जेक्ट का हीट होगा, ठीक है, रेडिएंट होगा, उसके थ्रू उसको सेंस कर लेगा। ठीक, वो उसकी अपनी कोई इंफ्रारेड लाइट एमिट नहीं करेगा। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट है और रूम टेम्परेचर के बराबर है तब तो वो सर सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसी रूम के टेम्परेचर के बराबर रहेगा। उसको चेंज होगा ही टेम्परेचर में, ऐसे थोड़ी ना कि बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। यस सर। तो इसका मतलब ये सर, जो टेम्परेचर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका टेम्परेचर सेंस करेगा, उसके टेम्परेचर के बेस पे सेंस करता है। ओके सर, क्लियर। एक्चुअली इसमें एक LED होती है, LED के पीछे एक आपका सेंसर लगा होता है, ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है, जो वो चेक करता है कि जो आपकी लाइट्स हैं वो लाइट्स एमिट होकर के रिफ्लेक्ट होकर के कैसे आ रही है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर को वो चेक करके देन उसको आउटपुट फॉर्म के अंदर आपको देता है। ठीक है, मैं आपको एक इसका कंस्ट्रक्शन या मैं आपको वर्किंग इसका बताता हूँ। मैं जस्ट अ मोमेंट, आपको मैं एक शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन मेरी, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। कहाँ गई मेरी स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? दिख रही है स्क्रीन सभी को? यस सर। ओके,
तो जैसे ये एक PIR सेंसर है, इसके आगे एक फ्रेस्नेल लेंस लगा हुआ है जिससे आपकी जो रेज हैं वो डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग, ह्यूमन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप मूवमेंट करते हो, तो ये बेसिकली उस टेम्परेचर को कंसिडर करता है, चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट सिग्नल देता है, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पर 2 सिग्नल है, फर्स्ट वन इज रेड एंड सेकंड वन इज ग्रीन, ठीक है। ग्रीन या ब्लू आपके कोल्ड टेम्परेचर को डिफाइन करता है, जबकि आपका जो रेड सिग्नल है वो हॉट सरफेस को डिफाइन करता है। तो अगर हॉट सरफेस है तो आपका आउटपुट पॉजिटिव आएगा, तो अगर जैसे जैसे आप ब्लू की तरफ जाएंगे ये आउटपुट आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस हीट सोर्स के मूवमेंट को ही ये PIR सेंसर चेक करता है। सर यहाँ जो बेसिकली एक ग्रीन और रेड है, हाँ सर जो ग्रीन और रेड है वो रे निकल रहे हैं उसमें से, PIR में से। क्या हुआ? सर जो ग्रीन और रेड है वो PIR सेंसर में से रे निकल रहे हैं, ये नहीं शो नहीं कर रहा है। नहीं ये कलर नहीं निकल रहा है एक्चुअल के अंदर, ये टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है कि ये जो रेड है वो रेड आपका हॉट सरफेस है और ये आपका ग्रीन या ब्लू है ये आपका कोल्ड सरफेस है। यहाँ से रेज नहीं निकल रही है, यहाँ से तो इंफ्रारेड रेज निकल रही है। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना, ये इंफ्रारेड रेज निकल रही है, बट ये केवल ये बता रहा है कि आपका जो रेड है, रेड के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका हाई आएगा और जो कोल्ड सरफेस है उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका लो आएगा। ये बेसिकली ये चीज बता रहा है, ठीक है। तो इसमें अगेन वही चीज होगी जो मैंने कल बताई थी, एक इंफ्रारेड एलईडी होगी और एक इंफ्रारेड सेंसर होगा, अगेन वही ट्रांसमीटर और रिसीवर, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? Excuse me, sir. बोलो रितिका। हेलो सर, AIR सेंसर में लाइक हम मेजर कलर्स डिफाइन करते हैं, लाइक रेड, ग्रीन, वैसे टाइप। सो व्हाट अबाउट द माइनर कलर्स, तो कलर जैसे कि कलर सेंसर हो गया है ना, उसमें बता रहे हो PIR सेंसर। सो पैसिव में तो लाइक हम कलर नहीं डिफाइन कर पाते ना। नहीं 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 नहीं, देखो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तुम लोग। एक्चुअली PIR सेंसर में कहीं कलर की बात नहीं हो रही है। PIR सेंसर बेसिकली आपकी डिस्टेंस मेजर करता है, आप कलर को एक बार भूल जाइए। AIR सेंसर कौन सा? एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर। ओके, एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर की बात कर रहे हैं आप। हाँ गुप्ता जी, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो वैसे जो कलर वाली बात है वो कलर सेंसर की है। एक्टिव और पैसिव में यही मेन डिफरेंस है दोनों में, कि एक्टिव में क्या है, ट्रांसमिट करने के लिए इंफ्रारेड एलईडी लगी होती है, रिसीवर लगा होता है, ठीक है। लेकिन पैसिव में ट्रांसमीटर वाला कुछ नहीं होता, उसमें वो ऑब्जेक्ट की इंफ्रारेड से उसको सेंस करता है। ये दोनों में डिफरेंस है बस, पैसिव और एक्टिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें डोर का एग्जांपल दिया था कि डोर जहाँ पे ऑटोमेटिक डोर होते हैं उसके ऊपर बस एग्जैक्टली बेटा, तुम्हें इसी से क्लियर हो जाएगा, जहाँ तुम्हारा ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं वहाँ तुम्हारा एक्टिव सेंसर होता है। एक्टिव सेंसर होता है, वहां से बीम्स आती हैं, बीम्स आती है, एग्जैक्टली। तो मतलब डिस्टेंस के लिए ये PIR एंड AIR एंड कलर्स के लिए कलर सेंसर। एग्जैक्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज में आते हैं। ओके ओके, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? सर पंकज। सर जो AIR सेंसर हैं और जो PIR सेंसर हैं सर, उसको अकॉर्डिंग टू यूज हम कहाँ यूज करेंगे, तो सर कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ हमें PIR सेंसर लगाना है, हमें AIR सेंसर लगाना है? देखो वो तो स्लाइड में दिखाया था ना मैंने, जो आपके डोर्स में लगे होते हैं ऊपर, ठीक है, जैसे बाहर लगे होते हैं लाइटिंग होती है, जो लाइट्स अपने आप ऑन होती हैं ऑफ होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कैसे ऑन ऑफ होती हैं, वो प्रेजेंस करती हैं लाइट को कि आउटडोर लाइट कितनी है या फिर लेवल कितना है लाइट का, ठीक है, उसको सेंस कर लेती हैं वो लाइट को, ठीक। जैसे ये बाहर लगा हुआ हमने स्विच दिखाया था आपने उसमें PPT में, ठीक। और जो PIR सेंसर है, जैसे आपके डोर्स में लगे होते हैं, ऑटोमेटिक लाइट होती है, रूम के बाहर भी होती है, जैसे ही कोई व्यक्ति, या फिर लाइट अंदर भी होती है, जैसे ही कोई व्यक्ति आता है रूम में घुसता है अपने आप ही लाइट ऑन होती है। वो कैसे ऑन होती है, वो उसके ऑब्जेक्ट यानी कि जो ह्यूमन आया है वो उसकी इंफ्रारेड हीट को जज करता है, उसमें डिफरेंस निकालता है, उसके अकॉर्डिंग वो रेट करता है, वो लाइट को करंट देता है, एक्चुएटर वर्क करता है और लाइट जल जाती है, ठीक है। वो अपने ये यहाँ पे यूज हुआ इसका पैसिव का। एक्टिव का हमने दिखाया, जैसे आपका डोर का एग्जाम्पल है,
उसकी अपनी एक इंफ्रारेड रेस की एक अपनी एक एरिया है, लिमिट है, उसके अंदर जब कोई आएगा तब वो उसको चेंज को समझ के उसको वर्क करेगा, एक्चुएटर वर्क करेगा उसको खोलने के लिए, डोर को खोलने के लिए। यहाँ दोनों में डिफरेंस है। ओके सर। ये मोस्टली जो एक्टिव पीआईआर सेंसर्स हैं वो बेसिकली तुम्हारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग वाला हो गया, ठीक है, या कोई कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सपोज कोई प्रोडक्ट जा रहा है, उसका मुझे चेक करना है इसमें कोई फॉल्ट वगैरह तो नहीं है, वहां ये एक्टिव सेंसर्स यूज में आते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां बेसिकली कोई चीज है वो मोशन के अंदर है, वहां मैं टेम्परेचर मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे पैसिव पीआईआर सेंसर बेसिकली किस पर वर्क करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर वर्क करते हैं, जबकि एक्टिव टेम्परेचर पे वर्क नहीं करते हैं, मूवमेंट पे वर्क करते हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो यहाँ तुम्हारा केवल प्रैक्टिकल चीज देखी जाएगी कि केवल मुझे टेम्परेचर को मायने रखते हुए डिटेक्शन करना है, वहाँ पैसिव सेंसर यूज में आएगा। और जहाँ केवल तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके मूवमेंट मेजर करना है या डिटेक्ट करना है, वहाँ तुम्हारा एक्टिव सेंसर यूज में आएगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? गो थ्रू योर स्लाइड्स वंस एक बार स्लाइड्स के ऊपर जाइए, वीडियोस को दोबारा देखो, ठीक है। स्लाइड में जितना भी लिखा हुआ है उसको एक एक बार पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। क्वेश्चन स्टूडेंट्स? So I think today's session was more interactive and more practical one. That's why more queries were there. So I think we should stop here. Gupta ji, आपको कुछ आगे और कुछ डिस्कस करना हो? Thank you so much. Okay. कल आप क्या डिस्कस करेंगे, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर दें। Tomorrow we will discuss स्टार्ट करेंगे, अंदर की चीजें जो है वो भाटी सर ही समझाएंगे। कल हम थोड़ा सा नोड एमसीयू देखेंगे और ऑर्डिनो देखेंगे, बस। उसके आगे जो पिनिंग होगी, सब चीजें जो डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद भाटी सर आप उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। सो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मैं यूट्यूब पर डाल के उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। और जिन स्टूडेंट को सपोज वॉइस क्लियर नहीं आ पाती तो उसके लिए यूट्यूब लाइव या फेसबुक लाइव का ऑप्शन हम यूज में ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।